Hello, Namaskar, Vanakkam. Today we are going to discuss about something which you see in your kitchen every day. आप रसोई में इन सभी चीजों को देखते होंगे. So that's what today's chapter is going to be. Do you know what this is? Okay, ये ब्रेड पकोड़ा नहीं है. Okay, ये है ginger, अदरक. Okay, I've got all this here just to show to you and to make the class and the explanation video a little more interesting. This is ginger, which is known as adrak in Hindi and inji in Tamil. Okay, so this is adrak. This is turmeric, okay, which is known as manjal in Tamil and haldi in Hindi. Now, the interesting thing about this one is that this particular brand of turmeric is one of the best that you can find in India. It comes from Meghalaya. My wife had gone to Meghalaya where she got it from there. It is called the Lakadong turmeric, which is considered one of the most healthy and the best quality of turmeric. This is called, and if you see, for instance, if I just break this, you see this, you can see it is absolutely orangish yellow inside. Okay, that's how it is, and it is great quality. So that's what we are going to study in this chapter. So शुरुआत करने से पहले, spice is any seed, fruit, root, bark, leaf or any other part of a plant used to give taste and color to our food. Try to recall the name. So इसमें से कौन से होंगे? Turmeric हो गया. Okay, you can recall so many of them. You can recall ginger, you can recall black pepper. अभी आगे नीचे जाएंगे. अभी इसमें यहाँ पे photographs हैं, which I hope you can see clearly. In any case, आपकी बुक तो होगी, आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं. So let us write what each is. You can write it in your own language, the name in your own language. Okay, that's what you need to do. So let's do that exercise. You can do it in your own this thing. So turmeric, what I just now said, it is haldi, or in Tamil it is known as manjal. Okay, this is fenugreek, which is methi in Hindi, METHI. Okay, methi के पराठे खाते हैं. Okay, then this is the cumin seed, which is jeera. Okay, or jeera भी लिख सकते हैं, but jeera is better. Okay, jeera is something, if you have acidity, if you just put a lot of jeera in your mouth and keep chewing it, it is very good. You don't have to go in for any other kind of medicines. Then there is asafoetida, which is हींग. Okay, वो एक white color का डब्बा आता है, and if you put this on curd and etc., those kind of things, it gives a very good flavor. Then there is cinnamon, which is दालचीनी. इसको पुलाव, बिरयानी वगैरह में इसका इस्तेमाल किया जाता है. Then there is clove, which is लौंग. अगर आपके दांत में दर्द है, if you have pain in the tooth, you use a clove, and clove oil is considered very good. Even toothpaste actually use clove. Then there is ginger, what I just now showed you, adrak. Then there is black pepper, which is kali mirch in Hindi. Okay. Okay, ये लिख लिया. Then I will take it up. Then the last two, fennel seeds and cardamom. इन दोनों को क्या कहते हैं? So fennel seeds is सौंफ, यानी कि after you finish your lunch, SUNSAUNF. Okay, SAUNF, सौंफ, to give so that your mouth remains fresh. And finally the cardamom, which is इलायची. Okay, मैं खुद ही भूल जाता हूं करके, I wrote it in the textbook so that I don't miss anything. Now आगे चलते हैं. Now this is a letter which has been written by the grandmother to her grandchildren. Dear Vikram and Vaibhavi, Namaste. I just got your message. So it's a letter which the grandmother Dadi has written to Vikram and Vaibhavi. I am happy that the natural cures that I had shared helped you. कि जो मैंने घरेलू नुस्खे, जो नेचुरल, यानी कि आप एलोपैथिक मेडिसिन नहीं खाते हैं, बल्कि मैंने तुमको नेचुरल क्योर सजेस्ट किया, उससे तुम लोगों को फायदा हुआ. ओके, यू शुड ट्राई टू रिमेंबर दिस क्योर्स कि आपको इन सभी इलाज के बारे में याद रखना जरूरी है. क्यों? एंड मे शेयर देम विद योर फ्रेंड्स, ताकि तुम अपने दोस्तों के साथ भी उसको बांट सको. व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, जब मैं बच्ची थी,
I learned them from my grandmother. So what is she doing? She is passing on the knowledge to the next generation, to her grandchildren. Just like she had learned it from her grandmother, she is passing it on to Vikram and Vaibhavi. She used to find home remedies. Home remedies मतलब घरेलू नुस्खे for most of the weather related common illnesses. Weather related क्या होता है? गर्मी से सर्दी हो, सर्दी से गर्मी हो, जुकाम हो जाता है. जुकाम को क्या बोलते हैं? कॉमन कोल्ड. कभी कभी फीवर हो जाता है, थ्रोट एक हो जाता है, कॉफ हो जाता है. तो दीज आर ऑल नोन एज वेदर रिलेटेड कॉमन इलनेसेस. की मौसम बदलता है तब कुछ ना कुछ आपको बीमारी हो जाती है, जुकाम हो जाता है, सर्दी हो जाती है, कॉमन कोल्ड, या गले में कुछ गड़बड़ी हो जाती है, एटसेट्रा. लेट मी शेयर सम ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ द स्पाइसेस दैट मोस्ट ऑफ अस हैव इन आवर किचन. ये सभी हमको अपने रसोई में मिल जाएंगे. ऐसा नहीं है कि आपको इसको मार्केट से लेके आना पड़े. आई मीन घर में किसी ना किसी काम के हमारे खाने के लिए इन चीजों का, जैसे मैंने कहा, अदरक का इस्तेमाल किया जाता है, हल्दी का इस्तेमाल किया जाता है, काली मिर्च का इस्तेमाल किया जाता है, इलायची का इस्तेमाल किया जाता है, दालचीनी का इस्तेमाल किया जाता है. इन सभी चीजों का इस्तेमाल घर में रसोई में इन एनी केस पड़े रहते हैं, तो इसको बाहर से लाने की स्पेसिफिकली जरूरत नहीं पड़ेगी. सबसे पहले मैं शुरू करती हूं हल्दी से. लेट मी स्टार्ट विद हल्दी, विच इज कॉल्ड टर्मरिक इन इंग्लिश. इट हेल्प्स इन इंप्रूविंग आवर एनर्जी लेवल एंड डाइजेशन. ये अगर आपके खाने में मिलाई जाए, या इसको अगर आपको आपका गला खराब हो या कॉमन कोल्ड हो, सो वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स टू डू इज टू मिक्स टर्मरिक इन मिल्क. ओके, इन वार्म मिल्क. इफ यू मिक्स मिल्क, आई एम टेलिंग दिस टू यू बिकॉज मैं करता हूं ये. तो हल्दी का दूध आप पियो, इट इज कंसिडर्ड वेरी गुड. It's a very good thing. It helps you in digestion. It also increases your energy. It also improves your immunity. It helps in reducing body pain too. अगर फीवर वगैरह हो. उसके बाद हम चलते हैं मेथी की तरफ, जिसको कि फेनुग्रीक बोलते हैं इंग्लिश में. आपको इसके इंग्लिश नाम याद रखने पड़ेंगे. ओके, you will be surprised to know that it helps me in keeping my sugar level and my body weight in control. अगर आपका बॉडी वेट बहुत ज्यादा हो तो उसको कंट्रोल किया जा सकता है. इसके साथ साथ आपको डायबिटीज हो, शुगर लेवल वो 6.0 का एक लेवल होता है. ओके, मुझे मालूम है बिकॉज आई कीप गोइंग इन फॉर टेस्ट. तो अगर, हालांकि मुझे नहीं है, तो वो हो तो आपको ये हो कि वो 6 क्रॉस नहीं करना चाहिए. 6 क्रॉस करो तो देन आपको उसको कंट्रोल में लाना पड़ेगा थ्रू एक्सरसाइज एक्सेट्रा. लेकिन अगर आप इसमें मेथी का इस्तेमाल करें, then you can keep your sugar level also in control. I need to soak the methi seeds overnight and drink the water in the morning. तो मेथी सीड्स को आप रात को पानी में भिगो के डाल दीजिए, जैसे बादाम को पानी में भिगो के सुबह खाते हैं, उसी तरह से खा लीजिए और सुबह उस पानी को पी जाइए, ताकि आपका शुगर लेवल कंट्रोल में रहे, बॉडी वेट भी कंट्रोल में रहे. इसके साथ साथ जीरा, जिसको कि कमिन सीड्स कहते हैं, soaked in water overnight can also improve digestion and help improve sleeplessness. कि अगर आपको नींद नहीं आती है तो जीरा खाने से भी आपको फायदा होगा. ओके, then you were babies and had gas in your tummy. I used to put hing water on your tummy to give you some relief. Hing also helps in controlling cough and cold. तो हींग के फायदे ये हैं, even in terms of infants, you actually use them to reduce the gas in their tummy. दालचीनी एंड लौंग गिव रिलीफ व्हेन वी हैव टूथएक. जो जैसे मैंने कहा, ये क्लॉव का काफी इस्तेमाल होता है, लौंग का, इन टर्म्स ऑफ टूथएक. दालचीनी का तो इस्तेमाल खाने में भी करते हैं, बट उसका भी फायदा इसमें है फॉर टूथएक. अदरक, फैंटास्टिक हर्ब इट इज. कॉफ हो, कोल्ड हो, इसका एक काढ़ा बना के पी सकते हैं. बिटर रहेगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा आप शहद मिला लें तो इट विल बिकम अ लिटिल स्वीट. बट जिंजर, tulsi leaves, but all, my wife makes very good kada. Tulsi leaves, ginger, honey, and something else she puts. What is that called? A particular kind of seeds she puts. वो सब डाल के it makes very good kada. So that's something which उसमें जिंजर का इस्तेमाल काफी होता है. It also gives relief from pain. Do you know that ginger has been used for cooking for more than 4,000 years? Even today it is extensively used in cooking Indian food. क्योंकि उससे फायदा होता है डाइजेशन में भी. ओके, काली मिर्च obviously digestion में and relief from body pain. Then सौंफ खाते हैं in order to kind of they help with the digestion of food. अजवाइन, इलायची also helps in digestion and respiratory troubles in addition to curing bad breath.
Then, so now she says, now you go to the kitchen and try to identify these herbs and spices. And remember, you must consult an elder before you use them. My love and Ashirwad to both of you. Okay. Now, इसमें अभी questions की तरफ चलते हैं. Now, when I was a child, I learned them from my grandmother. She used to find cures. Now, where exactly in the kitchen did her grandmother find the cures? So, oh, ये सब मैंने यहाँ पे लिखा है. She found the cures in the spices and the herbs that were kept in the kitchen. So, cure किसमें थे? Spices और herbs में उसके cure थे. Give one example of weather-related common illnesses. That is very simple. Common cold and cough. Okay. Then, what kind of relationship did the speaker have with her grandmother? Relationship kya? I mean, they were the grandchildren, obviously, but they also had a very warm kind of a relationship. I mean, the question is a little vague. They were the grandchildren who were very close to the dadi or grandmother. Bhi aap likh sakte hain. Okay. Dadi soaked methi seeds overnight and drank the water in the morning to manage what? तो उसे क्या करने के लिए? शुगर लेवल एंड बॉडी वेट. तो अगर आप इस चैप्टर को 2-3 बारी पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएंगे. या मैं आपको सलाह ये देता हूं कि आप एक जगह पे लिख लीजिए, एक टेबल फॉर्म में लिख लीजिए, टैबुलर फॉर्म में आप नोट कर लीजिए, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो. अरे फेनुग्रीक इसमें था क्या, इलायची इसमें था क्या, अदरक इसमें था क्या, ऐसा कंफ्यूजन ना हो. एक टैबुलर फॉर्म में लिख लीजिए, उसका कोई कोड बना लीजिए ताकि आपको रिटेंशन करने में इजी रहे. ओके, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है. ओके, देन circle the spice that is not used for body pain according to Dadi's letter. Turmeric, ginger, black pepper, fennel seeds. So the correct answer is fennel seeds. इसका इस्तेमाल body pain के लिए नहीं होता है. Why did Dadi ask Vikram and Vaibhavi to share the natural cures with their friends? कि उन्होंने क्यों कहा कि अपने दोस्तों के साथ इसको आप शेयर कीजिए? क्योंकि share with your friends so that more youngsters could know the value of the spices and herbs and they could make use of them in case of weather related illnesses, an ailment or weather related common illnesses, ताकि उनको फायदा हो. Okay, how do we know? Oh, okay, what was Dadi's final advice to Vikram and Vaibhavi? कि तुम किचन में जाओ. That the final advice was to go to the kitchens and try to identify the herbs and spices and consult an elder before they use them. तो आप पूरा इस तरह से सेंटेंस को पूरी तरह से आंसर में लिखेंगे तो 2 में से 2 मार्क जरूर मिलेंगे, कोई भी मार्क्स आपके नहीं कटेंगे. ओके, हाउ डू वी नो दैट नेचुरल क्यूर्स आर पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो इसका आंसर कैसे लिखना है? क्योंकि नेचुरल क्यूर्स मैंने यहां से बिकॉज से शुरू किया, लेकिन आपको पूरा लिखना पड़ेगा. Natural cures are passed on from one generation to another because Dadi's grandmother had taught her about the natural cures to her, and thus we know that it is passed from one generation to another. Similarly, Dadi is now passing on the knowledge to her grandchildren Vikram and Vaibhavi. तो ये पूरा लिखिए, दूसरा सेंटेंस को मिस मत कीजिए, तभी आपके पूरे 2 या 3 में से 3 मार्क फुल मार्क्स आपको मिलेंगे. ओके, Why do you think we should know about the healing properties of spices? जरूरी क्यों है कि हमको पता चले? So that we can use them. We need to know so that we can use them to cure our ailment, as these spices and herbs have no adverse side effects. ये जरूरी है ना कि अगर आप कोई एलोपैथिक मेडिसिन लेते हैं, जनरली क्या होता है, उसका कुछ साइड इफेक्ट रहता है, राइट? लेकिन कभी कभी मुंह में ब्लिस्टर आ जाते हैं, कभी कभी हेडेक हो जाता है, फिर हेडेक के लिए दूसरा गोली लेना पड़ता है, वो सब होता है. लेकिन इसमें कोई भी साइड इफेक्ट बिल्कुल नहीं होंगे. और दूसरी बात, these spices are also readily available in every home kitchen, can be used easily. तो ये 2 फायदे हैं जिसकी वजह से इसका इस्तेमाल करना चाहिए. ओके, सो दिस इज इंपॉर्टेंट. ओके, नाउ लेट अस लर्न इसके बारे में कि किस तरह से इसको किया गया है. ओके, तो इसमें आप देख लीजिए, टर्मरिक का कौन सा प्लांट का कौन सा पार्ट, उसका कलर कैसा है, टेक्सचर कैसा है और टेस्ट कैसा है. तो मैंने इसको यहां पर ऑलरेडी लिख दिया है. ओके, सो टर्मरिक एक्चुअली इसमें यहां पर आपको ऑप्शंस में स्टेम नहीं दिया है, लेकिन मैंने इसको रिसर्च किया कि ये हालांकि जमीन के नीचे से पाया जाता है. ओके, जमीन के नीचे से. आप इनफैक्ट वेयर आई स्टे, निजामाबाद, विच इज अबाउट 170 ऑड किलोमीटर्स फ्रॉम हियर, तो वहां पर टर्मरिक की काफी खेती होती है. तो उसको जमीन से निकालते हैं. तो जमीन से निकालते हैं तो आपको लगेगा कि ये रूट है, लेकिन साइंटिफिकली बात करें, हालांकि यहां पर आपको ऑप्शन रूट का ही दिया है, तो शायद आपको रूट ही लिखना पड़ेगा. बट साइंटिफिकली अगर आप किसी रिलायबल सेंटर वेबसाइट पे जाके देखें तो आपको पता चलेगा दैट इट इज एक्चुअली एन अंडरग्राउंड स्टेम, नॉट अ रूट which grows like a root, but it is a rhizome which is technically a stem. It is yellow in color and bitter in taste. Okay, तो ये एक कहानी, ये एक बात है. अपने टीचर से एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए कि क्या मैं स्टेम लिख सकता हूं, बिकॉज टेक्निकली रूट गलत होगा, लेकिन आपके एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में स्टेम का ऑप्शन उन्होंने गलती से नहीं दिया. फेनुग्रीक आर सीड्स
They are brown in color and bitter in taste. Cinnamon is they use the bark, यानी कि जो लकड़ी है उसका इस्तेमाल होता है, ब्राउन होता है कलर में, दालचीनी आपने देखा होगा, and sweet in color. Okay, sweet in taste. Okay, sweet in taste. Then clove, लौंग, उसके फ्लावर बर्ड्स, बिकॉज आपने देखा होगा लौंग के ऊपर एक फ्लावर की तरह रहता है, फ्लावर बर्ड्स को खाते हैं, ब्राउन इन कलर और काफी तीखा होता है. ब्लैक पेपर ऑब्वियसली तीखा होता है, काला होता है, और वो एक फल है, फ्रूट है वो. ओके, सो दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो. ये सब देख लो, इसलिए मैंने आपको पूरी तरह सब कुछ लिख के दिया है ताकि आप कोई भी गलती ना करें. ओके, सिर्फ एक टर्मरिक का आप जरा सॉर्ट आउट कर लें. कार्डमम, उसका बीज है, सीड है, ग्रीन इन कलर एंड इट इज स्वीट, एंड ऑल ऑफ देम आर रफ इन टेक्सचर. कोई भी स्मूथ इन टेक्सचर नहीं है, सबका टेक्सचर थोड़ा सा रफ ही रहता है. ओके, ये तो हो गया. देन हाँ, तो अभी इसमें ये कौन सा क्या है कि मे का मतलब क्या है, शुड का मतलब क्या है, कैन का मतलब, ये सब क्या है, मॉडल वर्ब्स है. ओके, द हेल्पिंग वर्ब्स. तो इसका ईच वन का मतलब क्या है, तो मतलब ये है कि मे होता है सजेशन, मे आई हेल्प यू. ओके, यू नीड सम हेल्प, मे आई हेल्प यू, तो आप सजेस्ट कर रहे हैं. शुड का मतलब एडवाइस, यू शुड डू दिस, ये आप सलाह दे रहे हैं. ओके, मस्ट मतलब ऑर्डर कर रहे हैं. ओके, मस्ट मतलब कंपल्शन, कि आपको यू मस्ट डू दिस बिफोर यू गो आउट टू प्ले. कैन, आई एम श्योर यू कैन डू दिस, कि तुम में वो क्षमता है, तुम में वो काबिलियत है कि तुम ये कर सकते हो. नीड टू मतलब नेसेसिटी, नीड मतलब ऑब्वियसली नीड, नेसेसिटी पता चल जाता है कि यू नीड टू डू दिस, ये तुमको करने की जरूरत है. यूज्ड टू, पास्ट हैबिट, अरे ही यूज्ड टू कम वेरी लेट एवरी टाइम, ये इसकी पुरानी आदत है कि हमेशा वो लेट ही आता था. ओके, आगे चलते हैं. ये मैं लिख के रखता हूं तो इजी रहता है. द हेल्पिंग वर्ब्स इन कॉलम ए आर कॉल्ड मॉडल वर्ब्स, और मॉडल्स, ईच मॉडल वर्ब हैज अ डिफरेंट फंक्शन, जैसा कि मैंने बताया. तो मैं लिख के रखता हूं तो मेरे को बैठ के लिखने में टाइम वेस्ट नहीं होता, जल्दी जल्दी कर सकते हैं. आपका भी टाइम वेस्ट नहीं होगा, मेरा भी टाइम वेस्ट नहीं होगा. ओके, मैंने ऑलरेडी टाइम लगा दिया है इसको करने में. आनंद हैड फीवर लास्ट वीक. ओके, तो इसमें कौन से फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, तो आनंद हैड फीवर लास्ट वीक, तो यू विल से ही नीड्स टू. ओके, ही नीड्स टू टेक गुड रेस्ट, यानी कि उसको जरूरत है अच्छे रेस्ट लेने की. सुमन सेज यस ही डैश और ही विल फॉल इल अगेन, तो क्या मतलब हुआ, ही मस्ट और ही विल फॉल अगेन, कि जरूरी है नहीं तो ये फिर से बीमार पड़ सकता है. अजय सेज ही डैश टेक ग्रैंडमदर नेचुरल क्योर, तो इसमें क्या होगा, ही मे, यू नो, कि it's a suggestion that is giving, he may take grandmother's natural cures. No, he's suggesting, Ajay is suggesting कि वो दादी के घरेलू नुस्खों का इस्तेमाल कर सकता है. सुमन कहती है yes we dash remember how effective they were, that we should remember, हमको ये जरूरी है याद रखने की कि वो कितने इफेक्टिव थे. अभी ये वो पीछे 102 पेज पर है. ओके, आप अपनी किताब में निकाल के रखिए, मैं इसको आगे नहीं लेके जाऊंगा बिकॉज आगे पीछे करना पड़ेगा. तो 102 पेज पर स्पाइसेस दैट हील हर्स, द वंडर हर्ब तुलसी इज अ श्रब इन द बेसिल फैमिली. ओके, तो यहां पर पूछा है फैमिली कौन सी है, द फैमिली इज बेसिल फैमिली. ओके, यहां पर ऑलरेडी आई हैव गिवन द आंसर, बेसिल फैमिली. देन उसके बाद लिखा है इट इज सेड दैट इट वाज फर्स्ट फाउंड इन नॉर्थ सेंट्रल इंडिया. सो फर्स्ट फाउंड इन नॉर्थ सेंट्रल इंडिया, फर्स्ट फाउंड इन नॉर्थ सेंट्रल इंडिया. देन उसके बाद है एंड नाउ ग्रोस ऑलमोस्ट एवरीवेयर इन इंडिया. इट इज नोन एज द क्वीन ऑफ हर्ब्स. सो एवरीवेयर इन इंडिया इट इज नोन एज द क्वीन ऑफ हर्ब्स. यहां पर फिल इन द ब्लैंक्स में आप हर्ब्स की रानी यानी कि क्वीन ऑफ हर्ब्स लिखेंगे. एंड हैज मेनी मेडिसिनल यूजेस. Studies show that it helps to decrease glucose and cholesterol levels. Can decrease levels of glucose and cholesterol. यहां पर आएगा शब्द ग्लूकोज. ओके, देन उसके बाद it is commonly used to treat breathing and digestion disorders of breathing and digestion. It has many bacterial properties. It is used in herbal hand sanitizers. Okay, mouthwash and hand sanitizers. Okay, mouthwash, toothpaste, digestion. It is used as a base for making herbal mouth and toothpaste, and for treating bad breath, gum disease, and mouth ulcers. We can have tulsi leaves
by eating them raw or mixing them in, using them while making tea. Okay. ओके, ये एक एक्सरसाइज है कि आप एक स्पाइस बने और आप उसके बारे में बात करें. ओके, सो दैट्स व्हाट इज द थिंग. एंड यहां पर इन फिल इन द ब्लैंक्स के साथ आपको लिखना है. टू प्रिपेयर दिस होम रेमेडी, आप इस फिल इन द ब्लैंक्स को देखिए. मैं बुक में से पढ़ता हूं. मैं, इट विल बी इजियर फॉर मी एंड देन आई कैन टॉक अबाउट इट फ्रॉम द थिंग. To prepare this home remedy, you just need ginger and honey. First, take a piece of fresh ginger, grate it, and then take the juice from it. Take about 2 teaspoons of this juice and add about 2.5 teaspoons of honey to it. Mix it properly. Warm the mixture. Okay, fill in the blanks. Warm the mixture slightly on very low heat for a minute. Then you can have it about 3 to 4 times a day to get relief from cough. Have patience to see the effect, as natural cures for cough with ginger, natural cures for cough with ginger and honey might take some time to show the results. तो ये हो गए आपके 4 fill in the blanks. The second one, B. To prepare the second home remedy for cough, take about 10 grams of each long pepper, dried ginger and basil leaves, यानी कि तुलसी के leaves. Add 4 to 6 small cardamoms and grind to get a fine powder. If you take this powder with an equal amount of honey, it will give you relief from cough. So ये हो गया आपके natural cures of cough के fill in the blanks के बारे में. Okay. Last section, इसके बारे में, तुलसी के बारे में आप लिखिए. आपके घर में तुलसी का पौधा होगा तो उसके बारे में लिखिए, वो देखने में कैसा लगता है और उसके क्या क्या फायदे हैं, उसके बारे में आप एक छोटा सा पैराग्राफ आराम से लिख सकते हैं. ये आपका होमवर्क हुआ. अगर आप चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, मैं इसको पढ़ लूंगा और आपको चेक भी करके दे दूंगा. ओके. When your tummy felt funny, I was used by your granny. I made you fit and fine and brought back your smile. Who am I? तो आइडेंटिफाई करने के लिए कहा जा रहा है. तो इसमें इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा हीइंग एज अ फिटुरा. ओके. देन उसके बाद, I come from under the ground thousands of years. I have been around for cooking. You use me daily. 4000 यूज से यूज कर रहे हैं. For cold, this ये कौन सा है? ये है जिंजर, यानी कि अदरक. इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरने के लिए कहा गया है. तो ब्राउनिश डैश इन कलर, ब्राउनिश येलो इन कलर, एंड बिटर टू टेस्ट. आई हेल्प एवरीवन टू रिड्यूस देयर वेट. ओके. हु एम आई? आई एम मेथी फेनुग्रीक. और लास्ट क्वेश्चन में आपसे सिमिलरली पोएट्री लिखने को कहा है, तो मैंने ये पोएट्री आपके लिए लिखी है. ब्लैक इन कलर एंड स्पाइसी इन टेस्ट, आई हेल्प एवरीवन ऐड फ्लेवर टू फूड एंड रिड्यूस बॉडी पेन. हु एम आई? आई एम ब्लैक पेपर. ये कविता मैंने खुद लिखी. तो इसके साथ वी कम टू द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर. इससे हमारा यूनिट 3 भी अभी खत्म हो गया है. अभी हमारे पास यूनिट 4 और यूनिट 5 है खत्म करने के लिए, वो भी हम जल्दी से कर देंगे. तो इसमें यहां तक के हमने यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 के सभी 9 चैप्टर्स के क्वेश्चन एंड आंसर्स भी साथ साथ सॉल्व कर दिए हैं, जो कि आपकी एनसीईआरटी के किताब में है. तो आई एम होपिंग दैट यू आर थॉरो विद ऑल दीज 9 चैप्टर्स. नो प्रॉब्लम. Now we have 3 chapters in unit 4 and 4 chapters in unit 5. So that यानी कि 7 और चैप्टर्स हैं जिसको भी हम जल्दी से खत्म कर देंगे. ओके. टाटा बाय बाय. गॉड ब्लेस यू. नमस्कार.